अरे यार, अरे मैं बहुत परेशान हूँ भाई। क्या हो यार, क्या चल रहा है आजकल? यार तुम तो जानते हैं हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, बट ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत प्रॉब्लम है। कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए यार, बाकी तब तो तू कर ही लेगा। कैसा बेसिक? भाई एसईओ, पीपीसी, गूगल एडवर्ड्स, ये सब बेसिक्स हैं, 3 पिलर्स हैं। इस पे डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है। ओह जी। हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आर्यन माय नेम इज सत्यम and today hope you all have understood what are we going to talk about. It's digital marketing. अंडरस्टैंडिंग a digital marketing. Then we will talk about how it works, how we are going to make digital marketing in real life. Then understanding SEO and it's important. And then we will talk about another aspect, learning PPC and its benefits. Then seeing how Google Ads work using demonstration. But digital marketing होता क्या है? कुछ नहीं, फोन में एड्स देखे हैं क्या कभी? हाँ देखा है, आते आते हैं, ज्यादा आते हैं, थोड़े आते हैं? ज्यादा आते हैं। ज्यादा आते हैं ना, तो उसी को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। टू प्रमोट यूजिंग डिजिटल सोर्सेज टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड ब्रांड्स टू कनेक्ट विद कस्टमर्स। कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए होता है कि हाउ यू कैन कनेक्ट यूजिंग डिफरेंट डिजिटल चैनल्स। लेकिन काम कैसे करता है ये? काम यार, काम की मत बोल यार, अब काम करने का मन नहीं कर रहा मेरा यार। जस्ट अभी एक रील देखी है, मनाली जाने का मन कर रहा है। देख यार, तू भी तो देख। Monsoon of cities and head to the enchanting town of Manali. Imagine waking up with the lush greenery and the fresh scent of rain-kissed earth. Spend your days exploring misty hills and meandering trails. Then unwind by the riverside with a steaming cup of chai. Guess what? अब हम दे रहे हैं up to 50% off on your stay. Enjoy luxury rooms, freshly brewed coffee, and our special food at The Ghar in Manali. और मिलो हमारे प्यारे dogs Snow से. Book your monsoon retreat now and experience a perfect blend of tranquility and natural beauty. The Ghar Manali, your home away from your home. अब सिर्फ आधी कीमत में। ਉਹ ਸੁਨੀਆਂ ਸੁਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ वाह, ये कितना अट्रैक्टिव था। एंगेजिंग भी तो कितना था, देख यार, सबका ध्यान इसी पे था। कितना कन्वर्ट भी कर रहा है, लाइक हमें जाना चाहिए। बिल्कुल यार, कभी जाएंगे तो इस पे बिल्कुल ध्यान देंगे। एग्जैक्टली। That's the way how digital marketing works. How they used a digital source, Instagram, YouTube, and different various sources to present their own video. They made this video attractive by using their own place. उन्होंने अपने ही घर को कैसे Airbnb, it's an Airbnb to specify you all. It's the Ghar Airbnb in Manali. They used their video skills to present here. They made it attractive. They made it engaging by using different vocals. How they were using कि हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे snow है, their dog, and how they were converting. If you remember, there is a line written, the Ghar, hurry up, book your stays now to get a 50% off. That's the way they are converting. मेरा मन भी नहीं होगा तो मैं यहाँ पे जाने की सोचूंगा कि यार 50% ऑफ मिल रहा है तो I should go. और रिटेन जैसे how the way we were talking कि हाँ यार देखी है, मैंने इसको सेव कर लिया, तो इन फ्यूचर जब भी मैं जाऊँगा I would be considering this as my go to place. Let's go to a further aspect कि डिजिटल मार्केटिंग में फर्दर होते क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं टू in perspective of you are the business owners and you don't know about digital marketing and the core basics. We know for the digital marketing we know Instagram हमें पता है, YouTube हमें पता है, but the things we don't know is the websites and all. So we are going to talk about that. Now we are going to talk about SEO, search engine optimization. SEO improve your ranking. Basically आप सब जब देखते होंगे, जब भी हम लोग कोई भी साइट या कुछ भी लिख, बस होटल भी हम लोग खोजते हैं तो जो टॉप पे आता है SEO उसको ऑप्टिमाइज करता है। बेसिकली एक तरह की प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपना वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि हमारा जो
तो वेबसाइट्स का जो रैंकिंग होता है उसमें वो टॉप आया और वो पहले विजिबल हो, मोस्ट विजिबल उसमें हम लोग को पहले दिखे। अगर कोई भी साइट पहले दिखता है तो ऐसा हम लोग का ह्यूमन थिंकिंग होता है कि हम लोग को पहले उसको ही खोलना चाहिए। तो हम उस तरह से ऑप्टिमाइज करके रैंक को इंक्रीज करता है। तो ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या हुआ? सर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हाउ वी आर ऑप्टिमाइजिंग। सर ड्यूरिंग डिजाइनिंग अ वेबसाइट और डिजाइनिंग अ हाँ. मार्केट वी tend to think about different titles, different keywords what are to be used to approach. So we need to be uplift our brand in front of other competitors. So it's a way, optimization is the word, proper word to be ahead of that, to optimize yourself to reach more. Supposedly if I represented that ad, so उसके basis पे हम उसको कैसे ज़्यादा approach कर सकते हैं। ठीक। So how many of you have booked an hotel or something previously? So have you noticed a pattern कि suppose if you are going to a place और एक पैटर्न देखा आपने कि कुछ होटल्स शुरुआत में दिखते हैं there is written sponsored results. Have you ever seen that? So that's because of search engine optimization. They optimize their servers according to that. And that is important for hospitality as well. If supposedly if I have done my SEO in a very good manner, मतलब मैंने अपनी optimization होटल की बहुत अच्छी करी है, तो मेरे जो results हैं वो बहुत जल्दी ऊपर पॉप अप होंगे। Because I will be using my keywords, I will be using my titles. I will be explaining these key terms ahead, क्योंकि आगे in more complex way हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो SEO क्या करते हैं इस होटल्स के टाइम पे इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो एक डिस्कवरी वो करता है, मतलब एक वो बूस्ट करता है कि ज़्यादा बुकिंग्स आए हमारे पास। That's the way it works. Now increase visibility. So basically when we increase our ranking for website, तो विजिबिलिटी खुद पर खुद ज़्यादा है क्योंकि वो वेबसाइट ऊपर की ओर लाइक पहले वेबसाइट आ रहा है तो इजीली टू विजिबल होगा। Now if its visibility is increasing, अगर उसकी ज़्यादा विजिबिलिटी हो रही है, पहले एक बंदे को दिख रही थी अब वो 10 बंदों को दिख रही है, तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा इंक्वायरीज आएंगी, हमें ज़्यादा रिजर्वेशंस मिलेंगी, हमें ज़्यादा बुकिंग्स मिलेंगी। So it's going to be that beneficial to our own aspect कि how this is going to increase, then visibility factor would be increasing our help. Now bring organic traffic. Organic traffic means एक ऐसे पर्सन या फिर कोई ऐसे पीपल वो साइट को देख रहे जो मोस्टली बुक करेंगे ही। तो लाइक जो साइट ऊपर आ रहा है तो हम लोग का माइंड में भी ये चीज़ होता है कि हम लोग लाइक टॉप पे कुछ चीज़ आ रहा है तो लाइक वो अच्छा ही होगा क्योंकि इसमें रैंकिंग भी सब कुछ अच्छे आते हैं, तो हम लोग उसमें जाते हैं और साइट्स को मतलब कोई भी आ रहा है कस्टमर तो वो मोस्टली विजिट के पर्पज से ही नहीं आ रहा, बस वो बुक भी कर लेता है मोस्ट ऑफ द। ऑर्गेनिक का मतलब यहाँ पे क्या है? खाद से? नहीं, So it's natural. हाँ नेचुरल। It's not paid, to be very honest. Being an organic traffic, we can build our trust. जब भी this can be done throughout the credibility. कोई भी गेस्ट आ रहा है हमारे पास, we can ask him to give us Google reviews or we can just ask कि हाँ ये इसको आप प्रमोट कैसे करो, वर्ड टू वर्ड करो, या फिर टू गिव दैट फैक्टर कि हम उसको एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं जो हमारे वेबसाइट्स हैं उस पर हम रिव्यूज अच्छे डलवाएं उन लोगों से, लाइक टू एनहांस इट मोर। बट डोंट यू थिंक इट विल बी बायस्ड आल्सो? जैसे आप खुद ही बोल रहे हो कि अगर हम लोगों से बोल रहे नहीं हैं सर, आई विल बी नॉट टेलिंग देम टू राइट अ पॉजिटिव रिव्यू as we have been there. I will be giving my example. I have been to McDonald's in this whole year for last 5 to 6 times and almost 5 में से 3 बार से the staff was there with to me to fill that feedback. So it was up to me. They were not standing upon my head कि इसको सही करो गलत करो। So that's the way. और बेसिकली ऑर्गेनिक भी है तो नेचुरल है, तो कस्टमर अगर उनको अच्छा लग रहा है तो फीडबैक देंगे ही अगर कोई भी लाइक ऐसा होता है। वो पहले ही पूछ लेते हैं कि डिड यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस, अगर कस्टमर हाँ बोल रहा है तभी फीडबैक फॉर्म बनाते हैं। That's the strategy. So now how SEO works? So to be very honest, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में ना SEO एक घर बनाने की तरह है कि how we build our house. हमारे घर पे हम कैसे बनाते हैं, पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, फिर बेसिक स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं कि नहीं यार मेरा जो रूम है उसको हम ऐसे ऐसे डिजाइन करूँ, उसमें ये फोटोज होंगी। देन व्हाट आर पेरेंट्स थिंक कि जो नेबर्स हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, हाउ टू हैंडल दोज थिंग्स, और कोई लड़ाई झगड़े ना हो नेबर्स के साथ, हम वो भी देखते हैं। देन
हम टेक्निकलिटीज देखना नहीं रहती, कई बार हमें घर की मेंटेनेंस वगैरह भी देखनी होती, कुछ आगे इन फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी देखना था कि हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन द यूटिलिटीज इन आवर हाउस। उसी बेसिस पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट द कीवर्ड सर्च। कि कीवर्ड सर्च रिसर्च होता क्या है, इट्स द बेस। कीवर्ड रिसर्च में क्या होता है कि जो पीपल होते हैं हाउ दे फाइंड द प्रोडक्ट। सपोजिटली इफ आई एम सेलिंग अ फोन, अब इस फोन को सेल करने के लिए मैं क्या दिखाऊंगा, मैं इसके कीवर्ड्स में क्या क्या डालूंगा, जब व्हाइल आई एम प्रेजेंटिंग माय प्रोडक्ट ऑन माय वेबसाइट उस पे मैं कीवर्ड्स डालूंगा। कीवर्ड्स आर बेसिकली द टर्म्स व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट योर प्रोडक्ट। इफ यू हैव ऑल सीन इंस्टाग्राम के नीचे कैप्शंस देखें तो इट्स द सेम थिंग, वो इस तरीके से इसको डिनोट करता है। अगर फोन है तो मैं उस पर डाल दूंगा कि इट्स फास्ट प्रोसेसर, उसका प्रोसेसर डाल दूंगा, टू क्रिएट फोटोज वीडियोज, इस तरीके के कीवर्ड्स रिसर्च आई वुड बी डूइंग। दैट्स द बेस फॉर एसईओ टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ देम। नेक्स्ट इज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली जैसे आरोन ने शुरू में ही बोला कि लाइक एक के घर की तरह, तो एक रूम की तरह, तो हम लोग अपने रूम को कितना अच्छा सजा सकते हैं। बेसिकली हम लोग अपने वेबसाइट को कितना अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं भाई, उसमें फोटो डाल के, वीडियोस डाल के और चीज़ों को लाइक साइट्स को बहुत अच्छा से अच्छा तरीके से सजा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें मतलब जाएं। सजाने मतलब क्या फूल पत्ती है? नहीं सर, लाइक कोई भी आप साइट्स खोलोगे, जैसे होटल्स का ही हम लोग साइट खोलते हैं तो उसमें फोटोज होते हैं, होटल के वीडियोस होते हैं, मैनेजर्स का मतलब फोटोज, मतलब तो आप कितना साइट्स को कितना अच्छा मतलब क्या बोले द फर्स्ट इंप्रेशन हाँ like बेसिकली कि हम किस तरीके से फर्स्ट इंप्रेस कर रहे हैं। Is it only about looks or something more? No, it's about the content we are using. Yeah. So basically, it's not just the photos. At last, मैं उन photos से तो hotel book नहीं करने वाला ना sir. That's the reference. And the titles and the tags we are using for that. And सर ऐसे तो बहुत कुछ है So इसमें। sir, हाँ उसमें बहुत we can talk a long thing हाँ. about that thing. okay, बहुत कुछ की बात करते हैं। और क्या है? So if we talk about that, if I'm supposedly if I have own my own hotel, I will be making my website. उसमें sir I would be taking care about how it is user friendly for the on page optimization. It is user friendly कि किसी को complications ना है basically कि they should handle it everything. एक clean website हो, ज़्यादा ये ना हो कि मेरे को बार-बार अलग-अलग servers खोलने पड़ रहे हैं उसके लिए। Yes. Mostly Google Chrome यूज करते हैं तो it should be optimized for that as well. And regarding कि वो यूजर फ्रेंडली हो बेसिकली, हाउ वी कैन कि किसी को दिक्कत ना है, अगर कोई दिक्कत आएगी तो वो वहीं से वापस चला जाएगा। एक्सपीरियंस शुड बी वेरी स्मूथ। Yes. जैसे आप देखोगे जितने भी जैसे सपोज करो ओयो का एग्जांपल लोगे आप, दे हैव मेड सच क्विक, इफ यू वांट टू मेक अ बुकिंग इट इज 3 स्टेप्स बुकिंग। तो इंसान के लिए इतना ज़्यादा इजी है। अगर इफ यू मेक इट टीडियस तो ऑब्वियसली बात बंदा आधा जाके फिर वापस निकल लेगा। तो आजकल क्या है, इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग द पर्सन ऑन द प्लेटफॉर्म, दैट इज ऑल्सो अ टास्क डेफिनेटली, एंड दैट्स हाउ एसईओ एंड योर कीवर्ड्स विल बी वर्किंग फॉर दैट। बट आफ्टर दैट, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि धंधा मिले। अगर बुकिंग, अगर वो आया उसने देख के निकल लिया, उसने परचेज नहीं करी, तो ऑब्वियस सी बात है कि यू विल बी लूजिंग द कस्टमर। यू वर एबल टू गेट सक्सेस टू गेट हिम टू ऑन द प्लेटफॉर्म। मे बी जैसे आप लोग देते हैं ना, लड़कियाँ मिंत्रा देख रही हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मिंत्रा इफ दे विल मेक इट टीडियस टू मेक द परचेज, तो ऑब्वियस सी बात है वो आधा करके निकल लेंगे, फिर दे विल गो ऑन अनदर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आसान होगा, परचेज करना आसान होगा। तो दैट्स व्हाई यू नो दीज कंपनीज दे फोकस मच मोर ऑन कि एक ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका बहुत स्मूथ, बहुत क्विक हो, मतलब इसमें कोई आपको डिस्कम्फर्ट ना आए कहीं पे। तो इट शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। जैसे मैं काउंसिल का एग्जाम्पल देता हूँ, कॉन्ट्री टू इट, काउंसिल में बच्चे भी जो एडमिशन का भर रहे थे यहाँ पे, तो इट वॉज सो मच कॉम्प्लिकेटेड दैट वी वर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम दैम। ऐसा भी होता है, एंड दैट्स व्हाई मेनी ऑफ देम, दिस कुड ऑल्सो बी रीजन। अब इंट्रोस्पेक्शन कोई करेगा तो दे कैन फाइंड आउट कि भैया बच्चे अगर रजिस्ट्रेशन कम हो रहे हैं, कोई भी डिक्लाइन आ रहा है, तो दिस कुड ऑल्सो बी रीजन फॉर दैट कि आपका जो वो है इतना कॉम्प्लिकेटेड है रजिस्ट्रेशन का तरीका। तो ऑब्वियसली बात है, पीपल विल नॉट एबल टू लॉग इन फॉर दैट। तो ये That's how on page optimization works. यस There was a factor which we talked कि how to tackle the neighbors. I want to ask कि कभी आपने कोई वेबसाइट स्क्रॉल करी हो and there are different links under that. Supposedly links हो सकते हैं वो किसी और वेबसाइट के लिए भी हो सकते हैं कि supposedly किसी आप होटल का ही देख रहे हो, they attach their Threads application, their emails
देन इंस्टाग्राम हैंडल्स. तो कभी आपने उस लिंक को क्लिक किया एंड हाउ फास्ट दैट ओपन्स. तो दैट्स द थिंग ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कि हाउ वी हैंडल आवर बैकलिंक्स, कि कैसे हम लिंक्स को क्रेडिट साइट पे सेंड करते हैं एंड हाउ वेल आवर लिंक इज बीइंग प्रोवाइडेड टू अदर वेबसाइट्स. हो सकता है कि जो हमारे लिंक्स हैं वो भी और लोग यूज कर रहे हैं, बट दैट शुड बी वेल ऑप्टिमाइज्ड. दैट्स द थिंग व्हिच इज नोन एज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन. Next, technology SEO. Basically, ensure your site is a fast, secure, mobile friendly. Make it easy for a Google, crawl and use navigate. तो basically इसमें ये होता है कि आप देख लो, लाइक घर बना लिए, घर बनाने के बाद हम लोग मेंटेनेंस भी तो करेंगे बेसिकली. तो इसमें एक तरह का मेंटेनेंस में हम लोग उसमें चेक करते हैं कि वो कितना फास्ट ओपन होता है, क्या वो सिक्योर है, हैक तो नहीं हो सकता, और मोबाइल फ्रेंडली. तो बेसिकली आज के टाइम पे कहीं भी हम लोग जाते हैं लैपटॉप लेकर घूमते नहीं रहते हैं. तो हम लोग अपने मोबाइल में कोई भी साइट है, फिर लाइक कोई भी कुछ भी खोज रहा हो, लाइक कोई भी शॉप हम लोग खोज रहे हो, होटल खोज रहे हो, तो मोबाइल में खोजे. तो हम लोग को ऐसा साइट बनाना होगा जो मोबाइल फ्रेंडली भी हो, ईजी हो सके, तो हम लोग मोबाइल में चलाने के लिए बेसिकली. SEO is paid or it's Sir, it is an optimization thing which we do it. It is a paid thing. We do these things using different softwares, which is Ahrefs, SEMrush, and Google Analytics is also one of the key components. We are also going to discuss that ahead. I hope you all are well aware that how SEO works. Now there are a few components which are to be discussed to get more visibility ahead in terms of hospitality. Now, focus on a local SEO. Claim or optimize your Google by business listening. Keep your address, contact information and working hours updated. So basically, अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब हम पहली बार जब नोएडा में आए थे और मेरे को रेस्टोरेंट में जाना था, तो हम लिखे थे रेस्टोरेंट नियर मी. तो बेसिकली जब हम लोग डाल रहे हैं तो जो भी लोकल के आसपास के एरिया है, वो जो सबसे मेरे पास होगा रेस्टोरेंट, जो नियरेस्ट रेस्टोरेंट है वो टॉप पे आएगा. अगर आप फाइंड करोगे रेस्टोरेंट नियर मी, तो बेसिकली उसमें एड्रेसेस, प्रॉन्ट उसका, और क्या बोलते हैं, हाँ लोकेशन, ये सब इतने प्रॉपरली डाला जाता है कि पहला जो होता है, फर्स्ट जो होता है, वो फर्स्ट लाइक ऐसे सीक्वेंस वाइज ही आता है बेसिकली. क्या कभी आप लोगों ने सर्च किया है? आई यूजुअली डू इट कि सपोज कहीं मेरे को जाना है, आई डू सर्च कि हाँ उस एरिया में कितने होटल्स हैं, कितने रेस्टोरेंट्स हैं, तो किस तरीके के हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ताकि मेरे को वहाँ जाके ये ना सोचना पड़े कि मेरे को कहाँ जाके खाना खाना है, कहाँ जाके रहना है. हैव यू एवर सीन दैट? व्हाई अगर हम उस जगह का नाम डालते तो ही वो एकदम से आगे आ जाता है. व्हाई डज हैपन? इट डज हैपन बिकॉज ऑफ कीवर्ड्स यूज बेसिस ऑन लोकेशन. कि लोकेशन के बेसिस पे कीवर्ड्स और टाइटल्स यूज हो रहे हैं कि वो इम्प्रॉम्प्टू आपको दिखे जब आप सर्च कर रहे हो. दैट्स द वे कि अगर मैं यहाँ पे यूज नहीं करूँ, सपोजिटली आई हैव माई होटल इन नोएडा इटसेल्फ और मैं लोकेशंस यूज नहीं कर रहा हूँ, आई जस्ट राइट यहाँ, सपोज आई टेक एन एग्जांपल ऑफ जिंजर होटल. वो क्या कर रही है, सिर्फ होटल और होटल की वो डाल देती है. अब मैं ये डालता हूँ कि होटल इन नोएडा, वो मेरे को विजिबल ही नहीं होगा. दैट्स अ वे कि वो सप्रेस हो जाएगा, मेरे को जो मार्केट मिलने वाला था वो अब नहीं मिल पाएगा. मेक योर साइट मोबाइल फ्रेंडली. सो बेसिकली मैंने जो पहले भी टेक्नोलॉजी वाला एसईओ में बताया था, उसी तरह वी नीड टू मेक आवर साइट सो मोबाइल फ्रेंडली, सो इजी टू एक्सेसिबल हो. Other way, encourage reviews and add visuals. If you have seen कि there are various types of foreign customers when we go to hotel. तो क्या होता है, our local tourists attract to those foreign customers. So what I have seen in different websites for the reviews, what they do, the hotel staff takes images with foreign travelers and they upload on their website. What they do, they encourage and put visuals. कि हाँ यार इन गोरों को देखकर वो लोग आएंगे. It's not about a taboo effect, but that's the mentality in India. कि हाँ यार वो लोग जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं. That's the thing and how they that's the way we encourage to upload more photos. We keep updated our menus, we keep updated our maps. कि that
the person should reach at an appropriate place. Now we'll come to the factor which was discussed by sir. These are three main. There are a lot, but these are the best in the market. Yes. Ahrefs, SEMrush, Google Analytics. Ahrefs is from Singapore. It's a company from Singapore, and the rest two are from United States. Google Analytics, I think you should be aware about. If you have seen analytics, what क्या है कि हम compare कर रहे हैं. It's not basically a lot about SEOs, but this is a kind of कि how we are going to manage our business. कि जो चीज़ हमने यूज़ करें, keywords हमने यूज़ करें, वो कितनी effective है. How effective these are. And Ahrefs and SEMrush, what they do, they understand your business. Supposedly, if I go to Ahrefs and SEMrush, any of the one which is according to my budget or according to my pay I am going to pay. अब suppose मैं इन दोनों में से कोई भी choose करता हूँ. Supposedly I choose Ahrefs. It's the best in the market. It's at a good number today. Ahrefs में यूज़ करता हूँ तो what they do, वो मेरे business को study करते हैं, मेरी location को study करते हैं, and according to that they tell me how you can promote it, how you can put keyword research, how you can visualize it. वो factors वो देते हैं. They tell me about that because I pay to them. That's the way SEO gets paid, and that's the factor how money is being generated. That's the way जो marketing का fund है वो ऐसे apply होता है. And by this time, I hope एक छोटा सा business owner इतना सब pay नहीं कर पाता है कि इसमें it's a huge investment in that point of period of time कि SEOs को invest करने के लिए. अब उस चीज़ के लिए हम क्या introduce करने वाले हैं? We are going to introduce PPC. What it all is? It's pay per click advertising. It is when you play when someone clicks your ad. अब आप लोगों में से सब लोग almost YouTube देखते हैं. I hope each and everyone sees. Have you ever seen कि ad आते हैं? A lot. हम skip कर देते हैं. वो जो ad चल रहा है उसके भी एक business owner पैसे देता है. They gives money to run that ad, and even if you click by mistake, गलती से भी click हो जाता है, the business owner is being charged. That's the way pay per click is being used. This was introduced because they wanted to invest a small amount and get more aspects in that thing. We'll be getting a thing about this after we discuss its steps and all. So next, instant visibility. Basically जब भी ad देखते हैं तो तुरंत से तुरंत visibility आता है और हमारा नज़र पहले ad पे ही पड़ता है क्योंकि ad पहले ही आ रहा होता है. हाईली टारगेटेड, तो बेसिकली हम लोग जब पीपीसी कर रहे होते हैं तो हम लोग पास ऑप्शन होता है कि किस टाइप के कस्टमर को हमको टारगेट करना है. ओके, तो लाइक वो हाईली टारगेट हो जाता है. तो जिस टाइप का कस्टमर हमें चाहिए होता है हम लोग उस टाइप के ही कस्टमर को बेसिकली वो एड्स रन कर रहे होते हैं. बजट कंट्रोल, तो बेसिकली उसमें हम लोग बजट भी कंट्रोल कर लेते हैं. हम लोग आगे स्लाइड्स में देखेंगे किस तरीके से बजट कंट्रोल होता है. नाउ मेजरेबल रिजल्ट, हम लोग रिजल्ट को भी मेजरेबल कर सकते हैं कि कितना वो ऐड चलेगा और कितना ऐड नहीं चलेगा. So to set up a PPC campaign, what's the first step? The first step is defining your campaign goals. अब campaign goal में क्या होगा? It is somewhat, supposedly I am selling a notepad. Supposedly मेरे पास एक notepad है, मेरे को ये sell करना है कि how to sell this. अब इसको sell करने का मेरा campaign है कि ये जो notepad है मैं चाहता हूँ कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं और 11th-12th हो गए, द स्कूल स्टूडेंट्स एज वेल, मैं इनको टारगेट करूँगा. दैट्स माई कैंपेन गोल कि आई एम गोइंग टू टारगेट दीज पर्सन्स टू शेयर माई प्रोडक्ट सो दैट माई प्रोडक्ट गेट्स मोर रीच, मोर सेल्स. नेक्स्ट, डू कीवर्ड रिसर्च. सो बेसिकली वी नीड टू रिसर्च अ कीवर्ड सो दैट इजीली वो एड्स जो भी होगा, लाइक कोई भी हम लोग कभी शूज़ लिखते हैं तो आप लोग देखोगे उस टाइप से ऐड आने लगती है शूज़ की. तो ऐसे कीवर्ड्स हम लोग फाइंड आउट करना होगा जिससे वो ऐड ज़्यादा रन हो सके. नाउ कीवर्ड में भी देखो एक और चीज़ होती है. बेसिकली इट्स नॉट ओनली अबाउट अ पर्टिकुलर कमोडिटी, इट्स मोर अबाउट दैट व्हाट काइंड ऑफ शूज यू आर लुकिंग फॉर. ठीक है, तो इफ यू वांट टू से कि अच्छा इसमें जो स्प्रिंग लगी हो या इसमें वो ईयर का वो सर्कुलेशन वाला हो, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर स्पेशलाइज्ड थिंग और वो आपके शू में है, बिकॉज नाउ वी आर शू इज अ बिगर थिंग, इज अ ब्रॉड प्रोडक्ट. अब नाउ वी आर हैविंग, जैसे आप मोबाइल की बात कर रहे थे शुरू में, तो मोबाइल केवल मोबाइल टाइप करना विल बी इट दिस थिंग.
now people they know that what exactly they are looking for. They are looking- Now they are looking for maybe कि जिसका इतना मेगापिक्सल का कैमरा हो, तो आप डालोगे कि ओके लेट्स से कि मोर देन 25 मेगापिक्सल कैमरा। अब आपका सपोज करो आपका जो मोबाइल की यूएसपी है, इफ इट इज दैट आपका 50 मेगापिक्सल का कैमरा है मोबाइल का, तो आप ये मेंशन करोगे उसमें कीवर्ड में कि इट इज 25 मेगापिक्सल कैमरा। तो जो भी सर्च करेगा मेगापिक्सल का आपका ये कि इससे ज़्यादा हो आपका, तो योर प्रोडक्ट विल बी रिफ्लेक्टेड। कीवर्ड इज मोर अबाउट स्पेसिफिक, It's specific. it's not word, that's why it is said key. Yes. So mobile is a only word, key is the feature. So whatever the specialty you are having, maybe possible कि कोई भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो मे बी 3-4 उसके अच्छी चीज़ें हैं which you are highlighting, you know them, or which differentiates them, which makes it more like monopolistic product, differentiated from others. तो वो those will be your key features, and those will be including your keywords. ठीक है, ठीक है। By now हमारे पास एक कैंपेन का गोल है, हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स हैं टू refine our product कि हाँ how to reach different consumers. Now we'll write an ad. It can be visually, it can be written description. But today in today's time, the photographic memory is a lot more than just reading. If you all also agree with, you all will also agree with that कि जो चीज़ हम देखते हैं वो ज़्यादा याद रहेगी। तो we prefer that thing कि हाँ we write an ad which is basically to present our product. That can be anything, how we can present that product. For our example in the presentation, how we saw the Airbnb, how they were using a video ad to represent it, the property to in front of their customers. नेक्स्ट, डिटरमाइन योर बजट। वी नीड टू बजट हम लोग को पता भी तो होना चाहिए कि एड्स पे कितना खर्चा हम लोग बजट पे करना है, कितना कितना हम लोग को प्रोडक्ट पे करना है। तो बेसिकली वी नीड टू डिटरमाइन आवर बजट। अब ऑलमोस्ट हमारे सब कुछ हो चुका है, हमने कैंपेन का गोल डिफाइन कर लिया है, हमने कीवर्ड रिसर्च कर लिया अच्छे से, हमने वी यूज अ गुड कीवर्ड्स, वी यूज्ड गुड वीडियोस टू विजुअलाइज आवर एड। हमारा जो बजट है फिक्स, सपोज 50,000 है तो वी हैव फिक्स दैट बजट, विद इन 50,000 ही हमारा यूज होगा। एंड एट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मॉनिटर और ऑप्टिमाइज। मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज क्या होगा? PPC campaign, it's been done through various things, but the most common is Google AdWords, which we are going to see in the next slide. Google AdWords, what does this do? You set a budget. Supposedly I am setting my budget for 50,000 and I tell them I want to run ads for at least 2 weeks. वो कैलकुलेट कर लेता है आपका कौन सा प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, वो सब कैलकुलेट कर लेता है। हाउ did Google do? I will be representing it over here. I want you all to pay attention to this thing. This is a bit complex if you don't understand. समझ आ जाता तो इससे ऊपर कुछ नहीं है पूरे डिजिटल मार्केटिंग में। Supposedly, if I want to begin with PPC, कि PPC होता क्या है? This is a thing which helps me to go towards that thing. वो जो steps मैंने बताए थे, those are going to represent here. Whenever I open Google Ads, this is the interface. I will start now to convert new customers with Google Ads. That's the tagline. How I am attractive? देखो कितना bold है, कितने pictures use कर रखे हैं. That's the behind. अब what will I enter? I will enter my business name. Whenever I'll be using it Google Ads, I'll be entering my business name. Now at this point, आप ये देखो where should the customer go? अब इसमें options थे हमारे पास, to your website, to your phone details और your app download page. जो हमने लिंक देखा है, हम YouTube पे या उस जगह पे लिंक्स देखते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं? वेबसाइट पे या उनके फोन नंबर्स पे, और द प्लेस वेयर योर एप्लीकेशन इज बीइंग अवेलेबल टू डाउनलोड. नाउ आफ्टर दिस, व्हाट वाज आवर फर्स्ट स्टेप इन PPC? कैन एनीवन? पहले विजिट करो साइट पे। साइट पे PPC का फर्स्ट स्टेप. सॉरी, मेरे को लगा इसका फर्स्ट स्टेप पूछ लो। That means you are not aware. It was setting up campaign goal, and that's the same. Choose a goal. अब we have various types of goals, and we have more. बहुत सारे options होते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट की परचेस करवानी है, या फिर लीड फॉर्म. लीड फॉर्म क्या होता है?
प्लेटफॉर्म इज अ टर्म विच इज कि हाँ मैं एक नया कंज्यूमर, मैं एक नया बिजनेस ओनर, अब मेरे को पता नहीं कि मैं टारगेट तो कर रहा हूँ 18 से 20 साल के, 18 से 25 साल के एज ग्रुप को। अब इस एज ग्रुप को आज की डेट में चाहिए क्या मेरे उससे रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, तो आई बी सबमिटिंग अ फॉर्म which gets to me about my potential customers, phone call leads. This can be an good option for the hotels कि phone call leads से क्या होता है, we can interact with the customer और उनको हम instead of just showing the website and all, हम phone पे ज़्यादा उनको engage कर सकते हैं। पेज व्यू कि वो हमारे पेजेस को ज़्यादा व्यू करे, the way they can interact, और brand awareness कि मैं सिर्फ brand को अवेयर कर रहा हूँ। That's these are types of setting a goal. Supposedly I have selected brand awareness over here. Now if we see वीडियो के तरीके से हम उसको यूज करने वाले हैं, एंड देन कैंपेन सब टाइप वी आर गोइंग टू यूज वीडियो व्यूज। वीडियो व्यूज में क्या होगा, इट्स अ स्किपेबल इन स्ट्रीम एप्लिक वो वे कि कैसे वीडियोस के अंदर इनस्केपेबल होता है। एंड नाउ वी सी कि हमने सेट कर दिया हमारा कि हमें इन वीडियो चाहिए। एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे एज इट इज कीप एन आई ओवर हियर व्हेनेवर द स्क्रीन इज बीन मूविंग, जस्ट कीप एन आई कि जो मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइजेशन था द लास्ट स्टेप इट्स बीइंग स्टार्टेड ओवर हियर कि कैसे हम जो अपना बजट सेट कर रहे हैं, जो हमारी कैंडिडेट है बिड और वीडियो एड, वो कैसे परफॉर्म करने वाली है। मैं जैसे यहाँ पे डालूंगा ईच एंड एवरी डिटेल, आई विल बी सेटिंग माई बजट, आई विल बी सेटिंग माई डेट्स, यहाँ पे मेरे को रिजल्ट्स दिख जाएंगे कि दीज आर द पोटेंशियल रिजल्ट्स जो मुझे मिल सकते हैं। आई एम पुटिंग 50,000 as my campaign budget, then its start date is on 25th of November and it's for 2 weeks. After this we do select networks, locations where we are going to use it, कि how well locations to be engaged, what is the languages we are going to use, बेसिकली ताकि हम जो चीज़ हम यूज करेंगे वो चीज़ें वहाँ पर थ्रो होंगी। कि अगर सपोज आई हैव यूज्ड लैंग्वेजेस हिंदी, तो जो हिंदी ज़्यादा समझ पाते हैं वो हिंदी लोगों को टारगेट करेगा। दैट्स द थिंग। ऑडियंस सेलेक्ट कर सकता हूँ, डेमोग्राफिक मेल फीमेल को टारगेट कर रहा हूँ मैं। इफ आई सपोजली एनी ब्रांड विच इज सपोजली टारगेटिंग फीमेल्स, तो आई बी एंटरिंग इन माई डाटा कीवर्ड्स, द वे दिस कीवर्ड्स, टॉपिक्स। अब नाउ इफ यू कैन सी कीवर्ड्स में यहाँ पे आप एंटर और पेस्ट कीवर्ड्स, वी हैव एआई टू गेट द कीवर्ड्स एंड ऑल टुडे, तो खुद नहीं करते हम लोग। एंड देयर इज अनदर वे, गेट कीवर्ड आइडियाज, इट्स रिटन एंटर अ रिलेटेड वेबसाइट। व्हाट विल आई डू, मैं अपनी वेबसाइट उठाऊंगा, यहाँ पे डालूंगा, आई विल बी गेटिंग माई कीवर्ड्स, इट विल हेल्प मी ऑन इट्स। Now I'll be adding a YouTube video which is my own ad copy, which we used right compiling ad copy. If you remember कि हमने PPC में ये हमारा थर्ड स्टेप था, right compiling ad copy। तो अब हम यहाँ पे अपनी ad डालेंगे which is a YouTube video। उस वीडियो के बाद क्या होगा, सपोजली ये वीडियो ऐड हो चुकी है, ये मैंने YouTube का लिंक डाल दिया उस पर। Now if you can see sponsored MSc.HNHA 2025-27 13 views. What does this show? कि जो ad मैंने डाला है उसकी डिटेल इसने पहले ही दे दी कि what the ad is। अभी मैंने उस पर टाइटल्स या हेडलाइंस कुछ डाली नहीं है। That's on its own and there is a skip ad. This is the way, उसने पहले ही बता दिया कि मोबाइल फोन में ऐसा एग्जाम्पल आएगा and there are various forms which I can see। टीवी में कैसे आएगा, लैपटॉप में कैसे आएगा। इट्स यूजर फ्रेंडली एज वेल, जो हमने डिस्कस किया था कि इट शुड बी कंपैटिबल फॉर ऑल यूजर्स। बट कुछ एड्स में स्किप ऐड का ऑप्शन नहीं आता है, वो कौन से वो होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस होता है, वी नो दैट इज बीइंग डन अकॉर्डिंग टू द बजट, दैट्स अकॉर्डिंग टू द बजट। हाँ, अगर इफ आई एम चूजिंग अ बजट विच इज विद इन माई लिमिट्स और मेरे को पता है कि आई कैन नॉट एक्सपेंड इट मोर, तो आई चूज दिस ऑप्शन। अगर इफ आई नो, क्योंकि एक वीडियो प्ले करने के लिए अप्रोक्स मेरे को शायद 40-50 रुपीज देने एक वीडियो। यहाँ पे रूम में अगर 10 लोग बैठे तो 10 लोग इंटू 40, और इट्स नॉट ओनली 10 व्यूज। एक पर्सन लाइक एक बारी एक अगर आप नो, इट्स ईच टाइम।
वो ऐड जितनी बार प्ले हो रहा पे पर है क्लिक वो ऐड कितनी बार भी प्ले हो सकता है। तो अलग अलग लोग तो जैसे YouTube में अलग अलग ड्यूरेशन में चला रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैं अभी YouTube चला रही हूँ तो सब बैठ के चला रहे नहीं ऐसे है, सपोज मैंने सपोज गूगल एनालिटिक्स पे गूगल एड्स को क्या किया, मैंने 50,000 पे कर दिए, मैंने अपनी ऐड दे दी, अब इसको प्रमोट करने का काम इनका है, ठीक है। ये मेरा क्या करेंगे, ये टारगेट सेलेक्ट कर लेंगे, मेरा सपोज टारगेट है 18 to 25 और ये उस टारगेट के क्रिएटर्स को ढूंढेंगे यूट्यूब पे। व्हाट दे विल डू, अब इस उसमें क्या होता है 18 से 25 के जो क्रिएटर्स हैं, दे कैन बी एनीवन, जैसे आज की डेट में हम देख रहे हैं कि एक ट्रिगर्ड इंसान हो, बहुत सारे हैं कि हैं। माय क्वेश्चन, हाँ बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट, आई नो व्हाट यू आर सेइंग। अब उस एक वीडियो पे देयर आर मिलियंस ऑफ व्यूज, यू नो मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं उस पे। अब सपोज मैंने वो वीडियो देखी, मेरे को वो ऐड दिखा, मेरे वाले जो मैं आई एम नॉट पेइंग दैट, जो वीडियो यूज हुई है उतना मनी अमाउंट मेरा डिडक्ट हो जाएगा फॉर दैट वन वीडियो, ठीक है। अब किसी और के में वो ऐड आया ही नहीं, जरूरी थोड़ी आपके में एक ऐड आया उनके में वो नहीं आया, तो इट्स so still डिफरेंट। it is gonna Yes. get deducted from your account. Okay. दैट्स थिंग। Okay, there's one more thing I like to add up on this. जो वीडियो वाली बात है वो तो है ही है, बट इट इज एप्लीकेबल टू वेबसाइट्स ऑल्सो। जो वेबसाइट्स आपको दिखाते हैं ना, वो जो बात कर रहे थे कि नंबर 1 नंबर 2, आपने सपोज करो कोई सर्च मारा कि भैया फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, वॉशिंग मशीन आपको चाहिए, तो आपका शुरू से आएगा ना 10 आपके सामने खुल के जाएंगे, दैट्स द स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स, वो भी उसी के तो perspective में उसमें भी जब आप क्लिक करते हैं तो शुरू के आप देखोगे ना जो आता है लिखा हुआ उसमें कि स्पॉन्सर्ड आपका, इफ यू क्लिक ऑन दैट इज आल्सो पे पर क्लिक। तो अगर आप क्लिक करके उसमें एंटर करके जा रहे हो, दैट मीन्स इट इज बेसिकली स्पॉन्सर्ड, इट इज पेड। बाकी नीचे के मे बी इट मे बी ऑर्गेनिक, डिपेंडिंग कि किसी क्या विजिबिलिटी किसी की ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली इट विल कम ऑन द टॉप। ये इनका एल्गोरिथम ऐसे ही होता है आपका बना हुआ, बट ऊपर आपका केवल स्पॉन्सर्ड वाले का ही दिखाएगा। बट सब वेबसाइट पे इजी होता है काउंट करना, बिकॉज वो कर रहे हैं जो ब्रॉडकास्टिंग से Broadcasting- वो तो मुश्किल होता है वही- count करना। वही तो ये सॉफ्टवेयर कर रहा है ना। It's not anybody's counting it. हाँ, मतलब It's the software which is doing it. कोई बैठ है अब जैसे मैं आपको कहूँ उस टाइम पे कि यू पुट टॉप IHM टॉप होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो यू नेवर फाइंड NCHM और IHM ऑन टॉप, बिकॉज इट इज समबडी ऑलवेज विच इज पेइंग, यू नो। आप देखोगे IHM है, इट विल बी ऑन द टॉप, सर्च में आप टॉप पे आएगा बिकॉज दे हैव पेड, इट इज द वेबसाइट इज बीन पेड। तो कोई भी सर्च मारेगा HM का तो वो सबसे ऊपर आएंगे, हम नहीं आएंगे। तो मे बी बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज दे हैव स्पॉन्सर्ड इट, तो इट इज एप्लीकेबल डेफिनेटली। वीडियो में तो है ही है, आपका वेबसाइट्स पे भी होता है आपको ये, ठीक है। नहीं आपका ये एग्जांपल बहुत बढ़िया है, इट्स वेरी So we had a topic of Google AdWords, so instead of just giving theory, Yeah. I thought this is the way कि सब नहीं इट्स वेरी गुड। लाइक वैसे थ्योरी वाला ये है भी नहीं हाँ, बेसिकली। फिर हम यहाँ पे हेडलाइन डालेंगे, देन वी आर गोइंग टू राइट द डिस्क्रिप्शन। हेडलाइन इज बेसिकली कि हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सी चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड देन वी आर राइटिंग द डिस्क्रिप्शन कि हम प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। सपोज मेरी हेडलाइन है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग से क्या होगा, जितने लोग होटल बुकिंग अपनी फीड में चेक कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा होता है कि जब भी हम अपनी किसी भी पेज पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पे कुछ सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड ही एड्स आते हैं हमारे पास। तो दिस यू हैव डन बाय योरसेल्फ एंड Sir, डिड yes. द रिकॉर्डिंग? Yes, I did the screen recording and then I added on the presentation. ठीक, गुड। And at this point of time, मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ. I would be telling you the perspective in more detailed manner, which Shreya was asking to me. CPV, cost per view. That was the main question you were asking. That's the reason I was not telling in depth at that time, because I wanted to tell it now. So I'll set my budget कि मेरा potential budget मैं set कर दूँगा 50,000. That's the minimum. That's the minimum maximum what is up to me. Maximum उतने तो मेरे इसके बाद क्या स्टेप होता है, बिडिंग सेट करने के बाद आई नीड टू पे टू गूगल एड्स पे। जैसे हम किसी भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी चीज़ की, हमने सारी चीज़ सिलेक्ट करी, डिटेल्स डाली एंड वी पे। वैसे ही इसमें होगा, जैसे ही हमने ये करा उसके बाद पे होता। CPV कॉस्ट पर व्यू, इट्स द एवरेज अमाउंट। एक एवरेज अमाउंट निकल के आती है कि हाँ एक वीडियो के लिए कितना पे कर रहे हैं, वो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। इंप्रेशंस हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, इफ यू कैन सी 3 बिलियन प्लस इट्स रिटर्न ओवर देयर। ये ऑप्टिमाइज होता है जैसे हम वी टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। CPV is not in a syllabus, it is just for the knowledge.
वो हमारे सिलेबस में नहीं है CPV की, हाउ CPV is going to work. And see, we can now monitor each and everything. हमारे ट्रू व्यूज कितने हो सकते हैं. दिस इज द डेटा ऑन बेसिस ऑफ व्हाट आई हैव एंटर्ड. टू बी स्पेसिफिक कि हमने वीडियो डाली, उसके बेसिस पे मेरे को कितने व्यूज मिल सकते हैं, कितने इंप्रेशंस मिल सकते हैं. ट्रू व्यू एवरेज CPV इट्स ₹1.2 फॉर ₹2.64. इतना बड़ा अमाउंट नहीं करता जितना मैंने ₹10 बताया था. दैट्स एन एग्जांपल. इतना घटने लग गया तो बिजनेस सारे बैठ जाएंगे. यूनिक रीच कितनी होगी मेरी, कि कितने लोग यूनिक मेरे को मिलेंगे इसमें. दैट्स द बेसिक थिंग. आई होप गूगल एड्स इज नाउ समझ आ गया होगा कि हाँ कैसे करते हैं. इन फ्यूचर कभी गलती से बिजनेस खोलना पड़ा तो कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस लिस्टिंग्स ऑन गूगल दीज टू आर बेसिक थिंग्स. मतलब दीज आर नेसेसिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन एनी बिजनेस. नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन. सत्यम, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? याद नहीं आ रहा. Can anyone of you tell? डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली कैसे हम अपनी कंपनी को एडवर्टाइज कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, और यूजिंग ऑल द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि वीडियोस हो गया, वेबसाइट्स हो गया. That's true. Digital marketing helps business attract and retain customers online. Can anyone tell me SEO क्या करता है? Satyam, it's the question for you as well. SEO क्या करता है? What's the main thing? ओके, सो SEO जो है वो मेनली मतलब अलग अलग लाइक उसके लिए मतलब डिजिटल मार्केटिंग के लिए मेनली यूज होता है. तो ये बेसिकली कोई इसके अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है जो यूज करके कंपनीज अपने आप को एडवर्टाइज करती है, अपने आप को डिजिटली मार्केट करती है. तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ SEO. उसके प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ अलग, मतलब वही जो अलग अलग तरीके होते हैं. Yes, SEO is the main factor which improves visibility and organic traffic by ranking sites higher on the Google. It helps to rank sites. अब PPC क्या ऑफर करता है? There were 4 main concepts which we taught. In PPC के बाद 4 जो main bullet points थे, जो सत्यम ने explain करे थे. Okay, Satyam, please tell them. PPC offered instant visibility through paid ads with measurable result. Now, can anyone tell me what does Google Ads lets the business do? Google Ads कैसे help करता है business को, क्या करने में help करता है वो? एडवर्टाइज करने के लिए मेनली हेल्प करता है. इसकी अपनी साइट होती है जो बेसिकली चार्जेबल होता है एंड कंपनीज अपने आप को एडवर्टाइज कर सकती है उनको उसका यूज कर. That's right. Just want to refine the words. Google Ads lets business target audience, choose keywords, set budget, and track performance. Now, what does together SEO and PPC strengthen? Can anyone tell me? This is a bit complex thing. ब्रांडिंग को, ओवरऑल ब्रांडिंग को, अपने आप को ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को स्ट्रेंथ करती है. SEO जैसे कि पहले आप लोगों ने बताया था कि ये मेनली बड़ी कंपनीज ज़्यादा एप्लीकेबल है. PPC छोटी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है. बट अगर इन दोनों को अगर मिला दे तो एक कंपनी की लाइक ओवरऑल जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है वो काफी स्ट्रेंथन हो सकता है. That's the appropriate answer. Together, SEO and PPC strengthen brand presence, drive traffic, improve conversions. Conversions in the sense कि जो कंज्यूमर है सिर्फ जो रिप्रेजेंट सिर्फ देख रहा है एड को, वो यूज भी कर रहा है उसको. Understanding these tools help business stay competitive and reach the right audience effectively. Thank you, and these are our references. Thank you. Thank you to all of you.